Good evening, church, and welcome to our midweek service. I was just thinking about a devotional thought this morning before we go into the service. Okay, so Psalm 23 verse 6 says, "Surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life." I was thinking about this verse, and I was reading something from Hudson Taylor. This is what he says. Okay, Hudson Taylor once said, "The Lord is my shepherd. He is a shepherd on Sunday, he is a shepherd on Monday. He is also through every day of my week, he is my shepherd. In January, he is my shepherd. In December, he is my shepherd. And from every month to every year, he is my shepherd." He said, "He is my shepherd at my home, he is my shepherd in China, and he is in peace and he is in war, okay, in abundance and in poverty. Like God is with him." That's what he writes. And he goes on to say, all God's dealings are full of blessings. Like everything that God deals with you and my life is a blessing. He says, "He is good and doeth good. Good only and continually." Can you imagine? We have a God who does only good. He cannot do anything back to us. Sometimes the situation seems to as if everything is going against us, or God is against us, or doing bad to us. But in fact, God cannot do bad because He can only do good. And he says, like today, as we think about this verse, like the believer who has understood the Lord is my shepherd, we can say, like Hudson Taylor said, like God is everywhere in my life and He's doing good. And we could surely see goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Like God's goodness and His mercy shall follow us all the days of our life. So today, even as we worship the Lord, remember this truth. No matter the way it went this week for you, but I want to tell you, everything God does for you and me is good. And knowing this truth, let's be established in this truth. Amen. Let's pray. Father, we thank you. Bless our beautiful worship today and give us an awesome service. In Jesus' name we pray. Amen. Shame is taken away.
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे
much and welcome to our midweek service. It's been an awesome day. Today is our wedding anniversary. It's been almost like 14 years together. What a joy to see God's goodness and mercy in our lives and continue to be with us. Keep us in your prayers. Okay, but before that, before we go into the service, we have some very important announcement. So today is a very special service. We have two guest speakers on our YouTube live channel. Okay, number one, we have Darshan. How many of you know Darshan? He preached a couple of times. He did worship for us in Messiah Church. And today, in fact, tomorrow, he'll be going back to Jaigaon. Remember, he came 4 years back. God met him one day and God put in his heart to do Bible college. And he trusted God, and by faith he came to Mumbai and he completed his 4 years. Very faithful, hardworking, always available to do any kind of work if been given to him. And here is Darshan with us, and he finished 4 years of Bible college. Now he's going back to Jaigaon for a season and work with Pastor Ratan, and he's going to depend upon God for this next move on the mission field. But even as a church, we are so blessed to have him in our midst. And before he goes, he's going to do an introduction message for us today. This is his last message before he goes to Jaigaon as a missionary. So let's wherever you are, why don't we all stand or agree with me as I pray for him as he goes on a mission field. Okay, Lord, we just thank you for our precious friend Darshan. Thank you for his life. Lord, thank you for using him in Bombay. Thank you for his labor of love. Lord, the way you met him and brought him to Bible college today. He's finished 4 years and is going to go back as a missionary. Lord, we know that you have been with him thus far, and you will be with him further, Lord. I also pray that you would give him direction, your leading, your guidance, your wisdom, and your provision for all the moves that you have for his life. I pray that you protect this young lad from the things of this world. Help him to trust you, that his faith would not favor, but he will go forward with you, Father. We also pray, Lord, that you would bless his work. Wherever he puts his hand, that you would flourish it, enlarge his boundaries, and use this young man for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, we also have today, a very special guest. Okay, we have Pastor Peter Akbar, who's going to bring forth the word for us today. Okay, after Darshan's introduction message. But what's amazing is what a blessing to have Pastor Peter Akbar. He's an amazing friend to us. Okay, we both come from the same state, and that gives us more friendship to each other. But more than that, he's a man of passion. He loves the word, and he comes from a Muslim background, and the Lord met him, and today he's going all around the world preaching the word. And it's a privilege for him to be here with us today and bring the word. And he's going to also speak on Sunday. So it's going to be an awesome week. Okay, we'll have a treat from Pastor Peter Akbar. Okay, so let's welcome both of them, beginning with Darshan first, to give him a big hand and welcome him. And then later, Pastor Peter Akbar. Amen. Amen. हाय ग्रेटर ग्रेस वसई वेस्ट आप सबको स्वागत है फिर से इस मेरा आज ये संदेश है छोटा सा। तो मैं आप सबको, मुझे जानते हैं आप सब लोग कि मैं दर्शन लामा, तो पिछले बार मैं आया था आप लोगों के बीच में और आप सब से मुझे प्रेम मिला था, और मेरे तरफ से भी आज आप सबको प्रेम है, याद है, प्रार्थना है। और मैं पास्टर किशोर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया, जो ये छोटी सी एक संदेश को आपके आगे रखने के लिए। तो उसने मुझे विश्वास किया और उसने मुझे मौका दिया, तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। तो मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश है, जो चीज़ मैंने बाइबल मेडिटेशन से जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तो आइए हम इस संदेश को हम देखते हैं। वैसे मैं अभी वसई में ही हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ 2 दिन बाद, तो घर जा रहा हूँ जयगांव, वेस्ट बंगाल। तो मुझे प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, तो हो सके मैं फिर से आपसे मुलाकात कर सकूं जब मैं कॉन्फ्रेंस में आऊं। तो आइए मैं संदेश को शुरू करता हूं। तो आज का मेरा संदेश का टाइटल है इनवर्ड फेथ, अंदरूनी विश्वास। जो अंदरूनी विश्वास जो हम दिखते नहीं है कि नहीं, जो इनवर्ड फेथ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दाऊद और गोलियत की जो युद्ध थी, आप लोग जानते हैं किस तरीके से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया था, और हम जानते हैं परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पर 1 सामुएल 17 का 33 में लिखता है,
फर्स्ट सैमुएल 17:33 से लेकर 39 तक हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की बातें होती है और दाऊद और साउल के बीच में, और साउल इनकरेज की जगह डिस्करेज करती है, दाऊद को बार बार डिस्करेज करते। क्या बोल के डिस्करेज करते हम देखते हैं वचन में से। हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखता है कि साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती की विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वो लड़कपन ही से युद्ध है। मतलब जो गोलियत है वो पहले से ही लड़कपन, वो लड़का से ही वो युद्ध है, लेकिन तू तो लड़का है, ऐसा बोल के वो बोलते हैं और उसको दाऊद को डिस्करेज करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को बार बार डिस्करेज करता है, लेकिन दाऊद बार बार परमेश्वर के कार्य को याद करते हैं और बोलते हैं कि जब मैं भेड़े चरा रहा था, है ना, जब मैं भेड़े चरा रहा था उस समय किस तरीके से सिंह और टाइगर और बियर जो भालू है उनके मुंह से मैंने अपने भेड़े को बचाया। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि परमेश्वर उनको ग्राउंड लेवल से ट्रेन अप करके लेके आया था। तो वहाँ पर हम जब देखते जाएंगे तो लेकिन वहाँ पर 38 और 39 में लिखा है कि तब साउल ने वस्त्र को पहनाया। जब दाऊद ने कन्फेस कर दिया, कॉन्फिडेंटली उनने जो बातें बोला, साउल विश्वास करने को आया कि सच में दाऊद लड़ सकता है, उनके मन में विश्वास। तो इस तरीके से उसने पहनाया वस्त्र, जो आर्मर बोलते हैं, आर्मर जैसे, तो पहनाया, लेकिन दाऊद चल नहीं पा रहा था। तो दाऊद कोशिश कर रहा था, उसने हथियार दिया, उसने उसका वो हेलमेट पहनाया, जो लड़ाई करने जाते समय हम देखते हैं, तो उस तरीके से उसने सारे जूते तक पहनाए, लेकिन दाऊद चल नहीं पाते। क्योंकि और यहाँ से हम क्या सीख पाते हैं कि देखो, यहाँ पर हम ये सीख पाते हैं कि हम दूसरों के विश्वास से हम शत्रु से नहीं लड़ सकते, वो हमें अपने आप तैयारी होना ज़रूरी है। और जिस तरीके से इफिसी के पुस्तक में लिखता है, इफिसी 6 में हम जानते हैं कि इफिसी 6 में हम देखते हैं 14 से लेकर 18 तक जब हम पढ़ते जाएंगे, वहाँ पर आर्मर ऑफ गॉड लिखा गया है। जो आर्मर, जो हमें एक वस्त्र है, आत्मिक वस्त्र जो हमें पहनना हर एक को ज़रूरी है आज। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि साउल ने दाऊद को बार बार डिस्करेज कर, तो इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे जीवन में भी या किसी और ऐसे इंसान हमें आके कुछ बात बताए जिससे हम डिस्करेज हो जाए, लेकिन हम पर्सनली तैयार है कि नहीं, पर्सनली गॉड ने हमें ट्रेन अप करने की हमें उन्हें इजाज़त दी कि नहीं। तो आज ये चीज़ ज़रूरी है, परमेश्वर ने हमें तैयार करना ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं कितने लोग, लेकिन आप छोड़ना मत ये चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आर्मर ऑफ गॉड क्या क्या चीज़ है। तो इंग्लिश में इस प्रकार है कि इंग्लिश में बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, शूज़ ऑफ गॉस्पल है, हेलमेट ऑफ सेल्वेशन, शील्ड ऑफ फेथ, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट और ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, और अंत में वहाँ पर प्रार्थना भी दिया गया है, क्योंकि प्रार्थना भी जरूरी है। तो मैं इसको हिंदी में आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झील पहन ले, और इस प्रकार से आप पढ़ते जाओ, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार और प्रार्थना। इस तरीके से आप पढ़ते जाना। 14 से लेकर 6 का, इफिसी 6 का 14 से 18 तक आप उन्हें यहाँ पर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर आज इस कहानी से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये है कि हम जैसे दाऊद ने साउल का वस्त्र पहनाया था, वो आर्मर पहना था, लेकिन वो चल नहीं। इसी तरीके से वहाँ पर मैंने 2 चीज़ मुझे सीखा कि दूसरे की विश्वास से हम शत्रु से युद्ध नहीं लड़ सकते। और यहाँ पर मैं दूसरा क्या सीखता हूँ कि साउल के जीवन में विश्वास लैकिंग है। साउल के जीवन में से विश्वास मुझे नहीं दिख रहा है वहाँ पर, और उसने सब कुछ पहन के रखा लेकिन उसके पास विश्वास नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर की वर्स है वर्स 16, की वर्स इफिशियंस 6:16 है की वर्स। वहाँ पर लिखा गया है कि 16 में इस तरह के लिखे थे, विश्वास का ढाल। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ, अगर मैंने जो हेलमेट ऑफ सेल्वेशन हेलमेट पहना है, जैसे मैंने वस्त्र पहनता हूँ, जैसे मुझे आत्मिक रीति से हम तैयार होते हैं, तो मैं हेलमेट भी पहन लिया, सुसमाचार का जूता भी पहन लिया, और वचन भी मुझे एकदम पक्का मालूम है, और सब ब्रेस्ट प्लेट है मेरे पास, धार्मिकता के वस्त्र है, सब चीज़ परमेश्वर ने मुझे दिया है, यहाँ तक कि प्रार्थना भी मैं करके तैयार हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर विश्वास में अगर मैं चूक रहा हूँ तो
मैं शत्रु से मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पर इफिसियों की किताब में ही लिखा गया है 11 में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफिसी 11 में लिखा गया है कि 6:11 में, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से शैतान की युक्तियों, और परमेश्वर भी जानते हैं कि आज के दिन में अभी इस समय हो सकता है हम कलीसिया में एकजुट नहीं हो रहे, फिर भी हम ऑनलाइन से हम वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वचन पहले से ही कहकर रख चुका है कि शैतान का युक्ति हमें आगे आएगा। तो आज इस शैतान के युक्ति से सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? या तो हम साउल की तरह बिना विश्वास उस वस्त्र को पहन के रखा गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने उस सारे चीज़ को पहन के रखा है और आप तैयार हैं शत्रु से लड़ने के लिए। अगर तैयार नहीं है तो आप फिर भी तैयार बन के रहना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में विचार चीज़ ऐसे है कि तुरंत 1 सेकेंड में अच्छे विचार भी आ जाते हैं, 1 सेकेंड में खराब विचार भी आ सकते हैं। तो मैं आपको इस समय इस मैसेज के दौरान में ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि साउल के पास सारे वस्त्र पहना हुआ था, उसने हेलमेट भी पहना था, उसके हाथ में तलवार था, उसके कपड़े थे, ब्रेसप्लेट थे, उसके जूते थे युद्ध में जैसे जाने, लेकिन उसके पास विश्वास नहीं था। लेकिन दाऊद के पास सारे चीज़ उसने पहन के रखा था, उसने सारी चीज़ तैयारी था। वो जब परमेश्वर उसको जंगलों में, पहाड़ों में, कठिनाइयों में उसे परमेश्वर सिखा रहा था। हो सकता है आज हम भी कठिनाई में हो, आर्थिक अवस्था में हम लोग बड़े गिर चुके हो सकता है कुछ चीज़ें घर में ऐसा ना हो, कुछ चीज़ें हमें ऐसा परेशानी हो हमारे जीवन में, जैसे हम दाऊद भी उस पत्थरों से, चट्टानों से होते हुए उस भेड़ियों को बचाता था, खुद भी तैयार होता था। आज हमें दूसरों को भी बचाना जरूरी है और खुद भी तैयार होना जरूरी है। अगर आज हम तैयार हैं तो हम दूसरे को बचाने के लिए हम सफल रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं साउल की कहानियों से, साउल और दाऊद की कहानियों से, लेकिन साउल के पास तो विश्वास ही नहीं था, उसने सारी चीज़ पहन कर। तो ऐसा ना हो, तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि ये छोटी सी संदेश से कि आइए हम विश्वास को भी साथ में लेके चले। अब विश्वास को हम कैसे साथ में लेके, विश्वास हम कैसे अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं? विश्वास तभी ग्रोथ हो सकता है जब हम संगति में बने रहते हैं, जब परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, जब उनकी कार्य को हम पढ़ते हैं उस तरह। क्योंकि जैसे हम देखते हैं रोमी 10 में लिखता है कि सुनने से विश्वास आती है। तो आप लोग वचन सुनने में पीछे मत हटिए। आप इस ऑनलाइन के थ्रू आप वचन को सुनते रहे, परिस्थितियों में भी हमें विश्वास हम ग्रोथ कर सकते हैं। आज समस्याओं में हम ग्रोथ कर सकते हैं। विश्वास ऐसे ही नहीं ग्रोथ होता, विश्वास जब हम फील्ड में आगे बढ़ते हैं तब विश्वास ग्रोथ हो है। आज दाऊद उस युद्ध में था, फील्ड में था, वो भालू और सिंह से वो लड़ रहा था और उसके विश्वास परमेश्वर पे मजबूत था। लेकिन साउल ने उस तरीके से वो तैयार ही नहीं था। आज हम साउल की तरह बिना तैयार रहेंगे तो हो सकता है आज हम शैतान हमें गिरा डाले। हाँ, हम विजय हो चुका है, परमेश्वर ने हमें विजय कर चुका है, लेकिन हम शरीर में हैं और शैतान हमें परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने से हमें बार बार रोकता है। तो आइए हम दाऊद की तरह तैयार रहे, साउल की तरह नहीं। उसके पास था, विश्वास लैकिंग था, लेकिन दाऊद सारी चीज से परिपूर्ण था, यहाँ तक कि विश्वास से भी। उसके पास सारी आत्मिक ढाल पहना हुआ था और साथ में विश्वास भी था। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए हम विश्वास में भी आगे बढ़े और सारे ढाल को भी पहन के, आर्मर ऑफ गॉड को भी पहन कर हम आगे चले और हम युद्ध में तैयार रहे, ताकि इस शत्रु की युक्ति में हम खड़े हो सकते। आमीन। सभी को आमीन। जय मसीह की। नमस्ते दोस्तों, ये दान के विषय में मैं आपके सामने कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। दान के विषय में बोलने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि हम जब दान देते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं और बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। और कई बार कुछ तकलीफ की वजह से हमने जो है दान देने में देरी हुई तो बहुत कुछ हम महसूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बराबर नहीं हुए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ जो है परमेश्वर का है। अब मैं कैसा जीता हूँ इसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सिर्फ जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम सबको दिया है, उसका सिर्फ हम एक रखवाले, भंडारी है और हम उसका सिर्फ देखभाल कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमने कभी कभी किसी से कुछ सामान लिया है इस्तेमाल करने के लिए,
हमारे पड़ोसी या दोस्तों से। जब चीज़ें जो है कभी कभी कुछ खराब हो जाते तो हम क्या करते हैं आमतौर से, या तो हम उसको अच्छा तरह से बना के देने की कोशिश करते, या नहीं हुई तो नया ही खरीद के दे देते। और इसी तरह या फिर हम समझो किसी के घर में जाते हैं, या फिर किसी के जो है पिकनिक का घर इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, तो उसमें भी जो कुछ भी चीज़ें रहती है वो उसको हम सही तौर से करते हैं। तो और सही तौर से उन्हें वापस देने का पूरी तरह हम कोशिश करते हैं। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर का जो चीज़ है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम किस तरह लौटाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर हमको ये दृष्टांत सभी लोग को मालूम है, परमेश्वर जो है तीन सेवक लोगों को बुलाकर बोलते हैं कि उनको अलग अलग तरीके के जो है, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 जो है देता है सिक्का। यहाँ पर धन का इस्तेमाल किया गया। आप पूरे दृष्टांत पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जब वो हिसाब लेने के लिए वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पहला जो सेवक है वो 5 जो जिसको दिए रहते हैं मालिक, वो जो है उसको पूरा तरह दुगना किया रहते हैं। और वचन 21 में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर मत्ती का 25 है, और बोलते हैं कि वहाँ पर उसने कहा, धन्य धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर ने यहाँ पर तारीफ की है। पहली बार हम देख सकते हैं कि ये तारीफ, दोस्तों एक अच्छा भंडारी करने के लिए, भंडारी होने के लिए हमें एक बार 2 चीज़ें जो है याद रखना है हमेशा। वो पहला चीज़ ये है, मैं जो है कोई भी चीज़ों का जो है मालिक नहीं हूँ। क्योंकि भजन संहिता 50वां अध्याय 12वां वचन में बोलते हैं सब कुछ जो भी है वो सब परमेश्वर का है। वहां पर साफ तौर से भजन संहिता में ये भी लिखा है, अगर परमेश्वर को भूख लगे तो मांगेगा क्या? नहीं, वो सब कुछ जो भी है उसी का है। क्या मांग तो हम सिर्फ उसके रखवाले, तो जैसा वो हमें जो आज्ञा दिया है उसका हमें पालन करना है। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों को भी भलाई करे। 1 कोरिन्थियों का 10:24 में इस तरह बोलते हैं कि अपना ही नहीं, अपना तो भला हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। हमें जो है अभी क्या करना है, हम अपने दान दशम से हम जो है दूसरों के बारे में भी सोचे, उनके भी जीवन में जो है इस दान दशम के द्वारा जो है उनके पास भी ये आशीष आए, मतलब उनका भी जो है वाकई ये है उद्धार आए उनके जीवन में भी। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो कागज का ये पैसा हो सकता है, ये भी ये इसमें भी जो है ये कागज भी जो है वो भी परमेश्वर का है, और इसमें हर चीज जो भी देखा जाए तो वो परमेश्वर का है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ लेके भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये भंडारी की तरह रखा है। और परमेश्वर ने जब मुझे ये जो रकम दिया है, जो कुछ भी धन दौलत दिया है और जितना भी दिया है, जैसे कि मुझे अगर से 5 तोड़े दिए गए, तो वो मैं उसका हिसाब जो है 1 या 2 देके नहीं कर सकता। कई बार परमेश्वर देते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह देखभाल करते, क्या मैं वाकई अच्छा भंडारी हूँ क्या। आइए प्रार्थना करते इस संदेश को यहीं पर खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, जो कुछ भी तूने दिया है हम धन्यवाद देते। पहला बात तो हम इस काबिल भी नहीं थे प्रभु, परंतु तूने इस काबिल बनाया, कहाँ से तूने कहाँ तक हमें लेकर आया। और परमेश्वर धन्यवाद, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ तेरा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को भी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय
सेवक कौन होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं? काफ़ी बार हम सुनते हैं कि कलीसिया में या मसीही सेवकाई में काफ़ी लोगों को हम ऐसे कहकर बुलाते हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं या परमेश्वर के सेवक हैं। तो परमेश्वर के सेवक कौन है या परमेश्वर का सेवक कौन है और उसके लक्षण क्या है या क्या होना चाहिए? तो सेवक के बारे में या सेवकाई के बारे में हम कहाँ से सीखते हैं या इसके बारे में हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मैं सोचता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ कि सेवक या सेवक कौन है, उसके लक्षण क्या है, ये जानने के लिए हमारा पहला जो एग्जाम्पल है या उदाहरण जो है वो यीशु मसीह से शुरुआत होती है। तो सेवक कौन है और उसके लक्षण क्या है, ये जानने के लिए मैं ख़ास तौर पर आपकी जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान मैं फिलिपियों की पत्री की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, ख़ास तौर पर सेवक और सेवक के लक्षण के बारे में। तो फिलिपियों की पत्री में दूसरा अध्याय हम देखते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर यहाँ से शुरुआत होती है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो यही वचन जो खास तौर पर तीसरा और चौथा वचन जो है, मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। सरल हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वार्थ और झूठी बढ़ाई से कुछ भी ना करो, परंतु विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझे। तुम में से हर एक सिर्फ अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखे। तो ये तीसरा और चौथा वचन क्यों महत्वपूर्ण है और इस वचनों से हम सेवक या सेवकाई या सेवक के लक्षण के बारे में क्या जान सकते हैं? क्योंकि पौलुस इन बातों को यहाँ पर दूसरे अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में यीशु मसीह को जोड़ते हैं और यीशु मसीह को दर्शाते हुए इन बातों को कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमने तीसरा और चौथा वचन पढ़ा है और 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे तो हमको उसका संदर्भ को समझने में हमारी सहायता होगी। 5वां वचन, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था, जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर से अपनी तुलना पर अपना अधिकार बनाया रखना नहीं सही ना समझा। 7वां वचन, परंतु अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को शून्य कर दास का स्वरूप धारण करते हुए और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन करके क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को दास बनाया है। यहाँ पर हम शब्द देखते हैं कि उन्होंने दास का स्वरूप धारण करते हुए, दास का स्वरूप धारण करना क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया। शून्य का मतलब क्या होता है? ये एक अंग्रेजी में हम जीरो कहते हैं, शून्य, जीरो। दास, यहाँ पर हमको पहला लक्षण पता चलता है, दास वो होता है जो अपने आप को शून्य बनाता है, मतलब जीरो। दास जो शब्द यहाँ पर देखते हैं यूनानी भाषा में, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि डूलोस। डूलोस का मतलब दास नहीं मगर गुलाम होता है। दास नहीं मगर गुलाम होता है। दास और गुलाम में फ़र्क क्या होता है? दास और गुलाम में फ़र्क ये होता है कि एक दास होता है, वो सुबह आता है, काम करता है और चले जाता है शाम को। एक दास का अपना खुद का परिवार होता है, अपने खुद के ज़िंदगी के फ़िक्र होते हैं और अपनी खुद का परिवार होता है और बहुत सारे अपने खुद के कंसर्न होते हैं, वो दास होता है। मगर गुलाम वो होता है, उसकी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है, उसके लिए उसका मालिक जो तय करता है वही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये गुलाम होता है और दास होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हो? रोमा की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में पौलुस 3 बातों को कहते हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस अपने परिचय देते हैं, अपने परिचय में 3 बातों को कहते हैं। वो कौन है, उसका मतलब वो कौन है और उसका दर्जा क्या है और उसका काम क्या है। जब हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि आपका परिचय दो, तो हम हमारा परिचय देते हैं कि मेरा नाम फलाना है और ये मेरे क्वालिफ़िकेशंस है और ये मेरे टैलेंट्स है, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर पौलुस अपना परिचय 3 बातों में देते हैं। वो कौन है, वो उनका दर्जा क्या है और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है। वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, डूलोस, मतलब मैं यीशु मसीह के लिए अपने आप को शून्य बनाया हूँ। मैं एक गुलाम हूँ, मेरी खुद की ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी वही है जो मेरा मालिक मेरे लिए तय करता है। मेरा यीशु मसीह जो मेरे लिए तय करता है वही मेरी ज़िंदगी है। मैं उसका दास हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ, डूलोस। मैं अपने आप को शून्य बनाया हूँ या बनाता हूँ। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ। ये मेरा दर्जा है, ये मेरा दर्जा है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ और मेरा काम ये है कि सुसमाचार प्रचार करना। ये मेरा मालिक का काम है और वही मेरा काम है। तो यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिलता है, पहली चीज़ हमको सीखने में मिलता है कि सेवक कौन होता है। यहाँ पर हमको पता चला है कि सेवक वो होता है अपने आप को शून्य बनाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया है और पौलुस भी कहता है कि मैं अपने आप को शून्य बनाता हूँ। यहाँ पर हमको एक सेवक की डेफिनेशन मिलती है। एक सेवक की डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर मैं आपसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। सेवक का डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को शून्य समझता है, डूलोस, गुलाम, जो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है, जो यीशु मसीह पौलुस के लिए तय करते हैं, पौलुस के लिए वही ज़िंदगी है, डूलोस।
और वो सुसमाचार के काम के लिए अलग किया गया है, वो उसका काम है। तो आप कौन हैं? क्या आप परमेश्वर के दास हो? तो उस दास का मतलब हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दास का मतलब आप समझे हैं, और अगले वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि दास के लक्षण क्या होते हैं। गॉड ब्लेस यू। पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि दास जो शब्द है उसका मतलब क्या है। जैसे कि पौलुस दास शब्द का इस्तेमाल जब भी करते हैं, वहाँ पर यूनानी भाषा में वहाँ पर लिखा गया है ड्यूलोस, जिसका मतलब दास नहीं मगर गुलाम होता है। गुलाम की ज़िंदगी उनके लिए जो मालिक तय करता है वही उनकी ज़िंदगी होती है। दास की खुद की ज़िंदगी हो सकती है, मगर गुलाम के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं होती है। अपना मालिक जो तय करता है वही उसके लिए ज़िंदगी होती है। तो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु के दास पौलुस और थिमोथियुस की ओर से, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं दास, या यहाँ इसका यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ड्यूलोस, वही शब्द पौलुस यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरा अध्याय में। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि दास के विषय में अगर हमको जानकारी हासिल करना हो तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि हमारी शुरुआत जो है वो यीशु मसीह से होनी चाहिए। तो फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ अहम बातों को पौलुस बताते हैं, खास तौर पर यीशु मसीह दास होने के विषय में वहाँ पर लिखा गया है। आइए हम वो वचनों को पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन में मैं पढ़ता हूँ। स्वार्थ और झूठी बढ़ाई से कुछ भी ना करो, परंतु विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझो। चौथा वचन, तुम में से हर एक सिर्फ अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखे। फिर पौलुस कहते हैं पांचवा वचन में, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। पौलुस पांचवें वचन में बताते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। ये वचन बताने से पहले तीसरा और चौथा वचन में जो पौलुस बताते हैं यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, उनके स्वभाव के रिलेटेड या उनके स्वभाव से जो अहम मुद्दे हैं वो बातें तीसरे और चौथे वचन में पौलुस बताते हैं। वो क्या है? तीसरे और चौथे वचन में पौलुस बताते हैं कि विनम्रता के साथ तुम में से हर एक अपनी बजाय दूसरे को श्रेष्ठ समझे। तो यीशु मसीह अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझा। चौथा वचन में अपनी ही भलाई का नहीं परंतु दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। तो ये दो बातों को हम यीशु मसीह के जिंदगी में देखते हैं। यीशु मसीह से हम ये बातों को सीखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया। पांचवा वचन में हम देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, इसके विषय में हम लोग 5 मुद्दों को देखते हैं। ये 5 मुद्दे हमको दिखते हैं वचन 6, 7 और 8 में। वचन 6 में लिखा गया है कि उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर से अपनी तुलना पर अपना अधिकार बनाया रखना सही ना समझा। 7वां वचन, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया। पहला मुद्दा यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया, 0। दूसरा, दास का स्वरूप धारण करते हुए, ड्यूलोस मतलब दास का स्वरूप धारण करते हुए मनुष्य की समानता में हो गए। यह तीसरा है। पहला, अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरा,
दास का स्वरूप धारण किया। तीसरा, मनुष्य की समानता में हो गए। चौथा, मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन करके, चौथा जो है अपने आप को उन्होंने दीन कर दिया। पांचवा मुद्दा है मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया। इन 5 मुद्दों को हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य बनाया। परमेश्वर जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, मगर मनुष्य की जो आखिरी स्थान जो होता है वो दास का स्थान होता है, गुलाम का स्थान होता है। यीशु मसीह ने वहां से लेकर यहां तक किस लिए आए हैं? किस लिए उन्होंने अपने आप को दीन बनाया, शून्य बनाया, दास बनाया? क्यों? इसका आंसर हमें मिलता है तीसरा और चौथा वचन में। तीसरा और चौथा वचन में हम देखते हैं कि अपनी बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझे। चौथा वचन, दूसरों की भलाई की ध्यान रखे। यीशु मसीह दूसरों को श्रेष्ठ समझे। कैसे? और दूसरों की भलाई का ध्यान रखे। कैसे? यीशु मसीह के लिए पिता के साथ में संबंध रखना अति उत्तम है, उनके लिए अति उत्तम है। मगर उन्होंने ये भी देखा कि दूसरों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उनके लिए दीन ना बना, अपने आप को शून्य ना किया, क्रूस पर अगर नहीं मरा, तो इनको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह की चाहत है कि पिता के साथ वो संबंध रखे, मगर जरूरत यह है कि दूसरों के लिए वो अपनी जान दे। एक तरफ पिता के साथ संबंध रखना, दूसरी तरफ लोगों के लिए जान देना। तो यीशु मसीह ने दूसरों को श्रेष्ठ समझा। यीशु मसीह ने दूसरों की भलाई का ध्यान रखा और अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर स्वयं को शून्य बनाया। उसके लिए शून्य बनाना, अपने आप को शून्य बनाना बहुत जरूरी था। तो ये रहा यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह शून्य क्यों बने? यीशु मसीह दास क्यों बने? यीशु मसीह अपने आप को नम्र क्यों बनाया? क्योंकि दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए जान देना जरूरी समझा। एक तरफ है चाहत, एक तरफ है जरूरत। तो यीशु मसीह दूसरों को अपने जहन में रखते हुए जरूरत जो है उसको पूरा किया। ये एक दास का लक्षण होता है, ये दास का स्वभाव होता है कि अपने हित की नहीं मगर दूसरों की हित की सोचा उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि पहला अध्याय पहला वचन में पौलुस ने ये दास का शब्द अपने लिए और तीमुथियुस के लिए भी इस्तेमाल किया। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या पौलुस में ये स्वभाव था? क्या पौलुस में वही स्वभाव था जो यीशु मसीह में था? तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा है कि पहला अध्याय पहला वचन मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, पौलुस और तीमुथियुस के लिए उन्होंने दास का शब्द इस्तेमाल किया। तो दास के लक्षण पौलुस में हमें कौन से वचन में दिखाई देते हैं? यहां पर पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 21वां वचन से हम पढ़ते हैं। वहां पर देखते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? उसके बारे में आगे जाकर वो बताते हैं। 22वां वचन में पौलुस कहते हैं कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। तो पौलुस कहते हैं कि आगे जाके तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। पौलुस के लिए एक बात है कि वो अगर मसीह के पास चले जाएं और मर जाएं तो उनके लिए लाभ है, मगर जीवित रहना भी जरूरत है।
तो पौलुस कहते हैं कि किसको चुनूं मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं। 23वां वचन में कहते हैं पौलुस, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। आगे जाके कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। पौलुस चाहते हैं, जी चाहता है, पौलुस का जी चाहता है कि वो मर जाए और यीशु मसीह के साथ बस जाए, यीशु मसीह के साथ जिंदा रहे, यीशु मसीह के साथ अपना वक्त बिताएं, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। 24 वचन कहता है कि परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस का दिल चाहता है कि यीशु मसीह के साथ रहे, मगर पौलुस शरीर में रहना जरूरत समझते हैं। एक है चाहत, एक है जरूरत। चाहत यह है कि वो यीशु मसीह के साथ में चले जाए और यीशु मसीह के साथ में बस जाए, मगर पौलुस दूसरों को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने हित के नहीं, दूसरों की भलाई के लिए वो सोच रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मरना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मगर जो मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं दूसरों के लिए सोचूं, ये दूसरों के लिए श्रेष्ठ नहीं है या दूसरों के लिए ये भलाई का नहीं है, फिर दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? उनको जिंदा रहना चाहिए। क्यों जिंदा रहना चाहिए? अगर पौलुस जिंदा रहेंगे तो उनको परमेश्वर के रास्ते के बारे में बताएंगे। 25वां वचन में बताते हैं पौलुस, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। तो पौलुस जिंदा रहना जरूरत समझते हैं, क्योंकि उनके जिंदा रहने से लोग जो है अपने विश्वास में दृढ़ पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा देंगे, उनको सही और गलत परखने के बारे में उनको ज्ञान देंगे, परमेश्वर में उन लोगों को बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ये है दूसरों की जरूरत। और एक है दिल की इच्छा, वो ये है कि मर जाना और परमेश्वर के साथ में रहना। वही लक्षण जो यीशु मसीह में है, जैसा 5वां वचन में पौलुस कहते हैं, 2 अध्याय 5वां वचन में पौलुस कहते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। मसीह का स्वभाव था कि दूसरों के लिए जान देना जरूरत था, नहीं तो उनको उद्धार नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को दास बनाया, अपने आप को नम्र बनाया, ताकि दूसरों का फायदा हो। पौलुस के अंदर भी वही लक्षण को हम देखते हैं कि पौलुस का जी चाहता है कि वो मरे और यीशु मसीह के साथ खुश हासिल करे, मगर पौलुस जानते हैं कि उनका जिंदा रहना जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझे, दूसरों की भलाई का ध्यान दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो दूसरों का विश्वास दृढ़ करने में उनकी मदद करेंगे। पहला यीशु मसीह, दूसरा पौलुस में वो लक्षण देखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पौलुस और 2 लोगों का नाम लेते हैं जिनके अंदर दास के लक्षण को देख सकते हैं। दास के लक्षण क्या है? अपने बजाय दूसरों को श्रेष्ठ समझना, दूसरों की भलाई का ध्यान रखना, यह दास का लक्षण होता है। तो अगले वीडियो में मैं इन और दोनों लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक अगर ये वीडियो से आपको आत्मिक तौर पर उन्नति पाने के लिए मदद मिली हो, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरों की मदद भी कर सकता है, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये वचन जो आपने सुना है आपको सही में अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी नया वीडियो आएगा और आपको
पता होना चाहिए तो आप नोटिफिकेशन की बटन को भी सेलेक्ट कीजिए। तो मैं मानता हूं कि ये वीडियो आपको आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू। क्या हमारा स्वभाव वैसा ही है जैसा यीशु मसीह का? क्योंकि पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन में पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का स्वभाव ऐसा था कि वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे और उनको उद्धार देने के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए वो सलीब पर मरे और उसके लिए अपने आप को उन्होंने दास बनाया और इस दुनिया में आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को उन्होंने इतनी महत्वपूर्णता दी है। वो जानते थे कि वो पिता से अलग होने वाले हैं और सलीब पर वो पुकारे भी थे कि हे पिता, मेरा हाथ क्यों छोड़ा आपने। पौलुस के अंदर भी हम वही स्वभाव को देखते हैं कि वो चाहता था कि परमेश्वर के साथ जाकर बस जाए और किसी भी तरह वो मरकर यीशु मसीह के साथ में रहे। शरीर में जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो शरीर में जिंदा रहेंगे तो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की विश्वास की दृढ़ता के लिए वो जिंदा रहकर उनकी मदद करेंगे। इन दोनों में हम वही स्वभाव को देखते हैं जैसा एक दास के अंदर होना चाहिए। तो पौलुस आगे जाकर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में और दोनों लोगों के बारे में बात करते हैं जो दास कहलाने के लिए लायक है। तो वो तीसरा व्यक्ति कौन है? पहला हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, दूसरा पौलुस के बारे में देखा। अब हम देखते हैं तीमुथियुस के बारे में। 2 अध्याय में 19वां वचन से हम पढ़ते हैं कि प्रभु मसीह यीशु में मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा कि तुम्हारा कुशल क्षेम जानकर मेरे उत्साह में बढ़ोतरी हो। तो पौलुस कहते हैं, पौलुस फिलहाल जब ये फिलिपियों की पत्री लिख रहे थे वो एक जेल में थे। रोमा के जेल में से ये खत लिख रहे हैं और उनको पता नहीं कि वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे, उनका क्या हाल होगा उनको खुद पता नहीं। मगर आगे जाके अपने उम्मीद के बारे में वो ज़रूर बताते हैं कि मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ से शीघ्र ही निकल जाऊंगा और आप लोगों के साथ में रहूंगा। मगर अब तक पौलुस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पौलुस ये कहते हैं कि मैं तीमुथियुस को आपके पास भेजूंगा, आपके बारे में मुझे बताएगा तो मेरा आनंद में बढ़ोतरी होगी। और 20वें वचन में पौलुस कहते हैं कि मेरी नजर में उसके समान ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। पौलुस तीमुथियुस के बारे में ये बात कहते हैं कि मेरी नजर में उसके समान ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जिसे मेरे जैसे वास्तव में तुम्हारी चिंता हो। मतलब पौलुस कहते हैं कि मैं जितना तुम लोगों के लिए फिक्र करता हूं, चिंता करता हूं, वही चिंता और फिक्र मैं तीमुथियुस के अंदर देखता हूं। यह पहला लक्षण है एक सेवक, एक दास, एक गुलाम के अंदर, परमेश्वर के गुलाम के अंदर देखने लायक स्वभाव जो होता है, दूसरों के लिए फिक्र करना, दूसरों की चिंता करना, जो हम यीशु मसीह में देखते हैं, पौलुस में देखते हैं, अब हम देख रहे हैं तीमुथियुस में। और आगे जाके पौलुस कहते हैं कि अन्य सभी मसीह की आशाओं का नहीं परंतु अपनी ही भलाई करने में लीन है। पौलुस कहते हैं कि सब लोग अपने आप को सब लोगों के सामने रखते हैं, मतलब सब लोगों से भी आगे रखते हैं। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरा मकसद पूरा होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। सबसे ऊंचा अपने आप को रखते हैं अन्य जन। मगर तीमुथियुस ऐसा इंसान है कि दूसरों को उन्होंने सामने रखा है, आगे रखा है, श्रेष्ठ समझा है। और पौलुस ने भी वैसा ही किया है, क्योंकि ये स्वभाव और लक्षण हम यीशु मसीह में देखते हैं।
और यही स्वभाव लक्षण हम पौलुस में देख रहे हैं और अब तीमुथियुस में देख रहे हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि इसके तरह दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वही फिक्र है, उसके अंदर वही चिंता है जो मेरे अंदर है तुम्हारे लिए। आगे जाके पौलुस कहते हैं कि तीमुथियुस के बारे में कि सब लोग अपने आप की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। वचन 21 में कहते हैं कि अन्य सभी मसीह की आशाओं की नहीं, अपनी ही भलाई करने में लगे हैं या लीन हैं। मसीह क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, इसकी फिक्र नहीं है उनको, मगर वो क्या चाहते हैं और उनका स्वार्थ का क्या है, उसी के बारे में वो लोग फिक्र करते हैं। मगर पौलुस कहते हैं कि ये जो तीमुथियुस है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज को मैंने देखा है, वो ये है कि मसीह की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह पिता का ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, जैसे पौलुस मसीह का ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, वैसे ही तीमुथियुस भी मसीह का ख्वाहिश को पूरा करने में उसका मन लगा हुआ है। ये दास का लक्षण है। और आगे जाके पौलुस कहते हैं कि 22वां वचन में पौलुस कहते हैं कि तुम तीमुथियुस की योग्यता से परिचित हो। मतलब फिलिपियों की कलीसिया जो है उन्होंने ऑलरेडी तीमुथियुस को परखा है उन्होंने और जाना है कि तीमुथियुस कैसा इंसान है। और आगे जाके पौलुस कहते हैं कि ईश्वरीय सुसमाचार के प्रचार में उसने मेरा साथ इस प्रकार दिया जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का साथ देता है। और एक लक्षण हम देखते हैं कि उसके अंदर वही चिंता है जो मेरे अंदर है, उसके अंदर वही फिक्र है। वो चाहता है कि यीशु मसीह का जो भी इच्छा है वो पूरा करना चाहता है, जैसा मैं पौलुस मेरे परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। और जैसा मेरे अंदर वो आग है सुसमाचार प्रचार करने की, वही आग उसके अंदर भी है। और वो मेरा साथ इस तरह दिया जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ हाथ आगे बढ़ाता है। ये सारे चीज जो है एक दास के लक्षण है, एक सेवक के लक्षण है। तो हम तीमुथियुस में हम क्या क्या देखते हैं, वो दूसरों के लिए चिंता करता है जैसे यीशु मसीह करते हैं और पौलुस करते हैं, और मसीह की आशा या इच्छा को पूरा करने में लगा है। जैसा पौलुस था वैसा तीमुथियुस भी है, और जैसा यीशु मसीह पिता के इच्छा को पूरा करना चाहते हैं वैसा पौलुस और तीमुथियुस भी है। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि सुसमाचार प्रचार करने में पौलुस का साथ परिश्रम किया। इन बातों को हम तीमुथियुस के अंदर देखते हैं। तीमुथियुस के लक्षण, एक दास होने का लक्षण है ये सब। आगे हम देखते हैं कि पौलुस और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उनका नाम है इपाफ्रोदितुस। इपाफ्रोदितुस कौन था? अगर हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपाफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। तो वहां तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तो फिलिपियों की कलीसिया जो है उन्होंने इपाफ्रोदितुस को पौलुस के पास भेजा था। फिलिपियों की कलीसिया जो है वो जानते थे कि प्रेरित पौलुस जो है वो जेल में है। फिलिपियों की कलीसिया ने इपाफ्रोदितुस को कुछ पैसे दिए होंगे और कुछ सामग्री दिया होगा ताकि वो पौलुस के जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने इपाफ्रोदितुस के हाथ से ये सामग्री या पैसा उन्होंने पौलुस को भेजा है। तो यहां पर हमको पता चलता है कि इपाफ्रोदितुस जो था वो फिलिपियों की कलीसिया का एक दूत था। पौलुस के पास गया
और वहां पौलुस की मदद कर रहा है। तो पौलुस कहते हैं कि दूसरा अध्याय 25वें वचन में, इस समय मुझे आवश्यक यह लगा कि मैं इपफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजूं, जो मेरा भाई, सहकर्मी, सहयोद्धा है, जो मेरी जरूरतों में सहायता के लिए तुम्हारी ओर से भेजा गया दूत है। तो पौलुस क्या क्या कहते हैं इपफ्रोदितुस के बारे में कि वो मेरा भाई है, सहकर्मी है, मेरा कलीग है, मेरे साथ में काम करने वाला है। और पौलुस कहते हैं कि सहयोद्धा है, मतलब मेरे साथ में वो लड़ाई कर रहा है, मेरी जरूरतों में सहायता के लिए तुम्हारी ओर से भेजा गया दूत है, मतलब मेरी जरूरतों को वो यहां पूरा कर रहा है। दूसरा अध्याय 26वां वचन में पौलुस कहते हैं कि वह तुम सबसे मिलने के लिए लालायित है और व्याकुल भी, तुमने उसकी बीमारी के विषय में सुना था। ओ, तो यहां पर हमको पता चलता है कि इपफ्रोदितुस बीमार था और उसके बीमारी के बारे में फिलिप्पी कलीसिया जो है वो सुन लिया था, तो शायद वो लोग फिक्र करते होंगे। तो यहां पर इपफ्रोदितुस जेल के बाहर है और पौलुस जेल के अंदर है। इपफ्रोदितुस जेल के बाहर होकर पौलुस की मदद कर रहे हैं और बीमार की दशा में भी वो पौलुस की मदद कर रहे हैं। तो आगे वचन कहता है 27 वचन कहता है कि बीमारी वह तो मरने पर था, किंतु उस पर परमेश्वर की दया हुई, न केवल उस पर परंतु मुझ पर भी, कि मुझे और अधिक दुखी ना होना पड़े। तो पौलुस कहता है कि वो बीमार ही नहीं, मरने पर था, मतलब मरने के करीब था। वो इस दशा में होते हुए भी फिलिपियों की कलीसिया जो है उनकी आशा को पूरा कर रहा है, क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया चाहता था कि इपफ्रोदितुस पौलुस की मदद करे। तो इपफ्रोदितुस ऐसा इंसान है कि कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया जो है उनको अपने से भी उन्होंने इंपॉर्टेंट समझा, उन लोगों को आगे रखा, पौलुस को आगे रखा, अपने आप को नहीं। इपफ्रोदितुस दूसरों को श्रेष्ठ समझा और यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने में लगा है। यहां हम लोग इपफ्रोदितुस के अंदर भी वही लक्षण देखते हैं, जो लक्षण यीशु मसीह में देखते हैं, जो लक्षण पौलुस में देखते हैं, जो लक्षण हम तीमुथियुस में देखते हैं, ये लक्षण हम इपफ्रोदितुस में भी देखते हैं। वो मरने लायक था या मौत के करीब था, मगर फिर भी सेवा में लगा है। और 29 वचन में पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आनंद पूर्वक उसका स्वागत सत्कार करना। पौलुस कहते हैं कि इपफ्रोदितुस का सम्मान और उसका सत्कार करो, सम्मान और सत्कार करो। और पौलुस आगे कहते हैं कि उसके जैसे व्यक्तियों का आदर किया करो। BSI बाइबल सोसाइटी वर्जन में लिखा है, और ऐसों का आदर किया करना, ऐसे लोगों का आदर करो जो अपने आप को नहीं, दूसरों को वो सामने रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को सामने रखते हैं, परमेश्वर को आगे रखते हैं और परमेश्वर के लोगों को आगे रखते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते, मगर दूसरों के लिए सेवा करने में लगे हैं। ये सच्चे दास हैं, ड्यूलोस हैं, जो अपने आप को नम्र बनाकर दूसरों को आगे रखते हैं। दूसरों के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए वो यीशु मसीह की तरह सेवा में लगे हैं। ये सेवक के लक्षण हैं। और पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोगों का सम्मान किया करो, इपफ्रोदितुस जैसे लोगों का सम्मान किया करो। जब यीशु मसीह को देखता हूं मैं, जब पौलुस को देखता हूं, तीमुथियुस को देखता हूं, इपफ्रोदितुस को देखता हूं, इन सारे लोगों के अंदर वही लक्षण है
ये यीशु मसीह जो हमारे रोल मॉडल है, जो हमारे मार्गदर्शक है और जो हमारे मिसाल है, उनके अंदर जो लक्षण है, उन्होंने अपने आप को नम्र बनाकर दूसरों के लिए जान दिया, मौत को भी उन्होंने स्वीकार किया ताकि दूसरों को उद्धार मिले। पौलुस ने भी दूसरों को श्रेष्ठ समझा, दूसरों के लिए उन्होंने शरीर में रहना अहम समझा, जरूरी समझा। तीमुथियुस ने भी वैसे ही समझा और पौलुस कहते हैं कि तीमुथियुस जैसा इंसान मेरे पास और कोई नहीं है। और पौलुस कहते हैं कि इपाफ्रोदितस, ऐसे लोगों का सम्मान किया करो। तुम किसका सम्मान करते हो? आप लोग किसका सम्मान करते हो? जिसको भी आप परमेश्वर के दास कह रहे हो, क्या उनके अंदर ऐसे लक्षण है? क्या उनके अंदर यीशु मसीह जैसा दास के लक्षण दिखाई देते हैं? पौलुस की तरह, तीमुथियुस की तरह और इपाफ्रोदितस की तरह। हम किसको परमेश्वर के दास कह रहे हैं? क्या उनके अंदर वो लक्षण है? मेरी उम्मीद ये है और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सबको यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। यीशु मसीह की तरह हम सबको बनना चाहिए। और जैसे पौलुस कहते हैं कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन में जैसे पौलुस कहते हैं कि जैसा तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। हम सब परमेश्वर के दास हैं और हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के तरह होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वचन, परमेश्वर का वचन, आपको आशीषित किया होगा। गॉड ब्लेस यू। God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day.